નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે ગુજરાતીના જે વિડીયો જોયા એમાં આપણા ઘણા બધા વિડીયો એટલે કે મારા મૂકેલા ઘણા બધા વિડીયો તમે જોયા. હિન્દીનો આ પહેલો વિડીયો આપણો છે. આપણે 5 પાઠ સુધી અભ્યાસ થઈ ગયો હિન્દીના અન્ય વિડીયો જોઈ અને થોડું ઘણું વ્યાકરણ પણ થઈ ગયું. છેલ્લો આપણો જે હતો પાઠ સ્વરાજ્ય કી નીવ, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈની આખી કહાની. તો એ આશા રાખું કે એનું સ્વાધ્યાય, એના પ્રશ્ન એ તમે લખી લીધા હશે અને એ તૈયારી પણ કરી લીધી હશે. તો હવે આજે આપણે સરસ મજાનો પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી. એમના લેખકનું નામ સાંભળો તો તમને એમ થાય કે લે આ પણ લેખક હતા, પણ આપણને ધ્યાનમાં આવશે થોડીક વાતો કરીએ તો કે અમિતાભ બચ્ચન છે એ કોન બનેગા કરોડપતિની અંદર ઘણી વખત ખૂબ શાયરીઓ કરતા હોય છે, ખૂબ કાવ્ય પંક્તિઓ બોલતા હોય છે. એ પોતાનું હોય છે, તો એ પોતાનું ઉજાગર કરતા હોય ત્યારે આપણને એમ થાય કે એક હીરોને પણ આવું આવડે, પણ એના મૂળમાં એક કલા છે, એના મૂળમાં એક કવિ છે, એના મૂળમાં એક સાહિત્યકાર છે. એટલે કે આજે આપણે જેમનો પાઠ ભણવાના છીએ એ અમિતાભ બચ્ચનના પિતા હરિવંશરાય બચ્ચનનો પાઠ છે. અને એમના જે પાઠો છે એ મોટાભાગે પોતાના જીવનમાં બનેલી ઘટના ને જ નિરૂપણ કરતા પાઠો છે. એટલે કે આ મેરી બીમારી શ્યામાને લી એ પાઠ પણ એમની પહેલી પત્ની શ્યામાના મૃત્યુ પછી એ એમને લેખન કાર્ય કરેલું છે. એમની સરસ મજાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ, સૌથી ઉત્તમ કૃતિ કે સાહિત્ય રચના કહી શકાય તો તે છે મધુશાલા. તો મધુશાલાની અંદર ઘણા બધા કાવ્યો સંગ્રહિત છે જે તેમની જીવન અને ઘટનાને લગતા જ બધા છે. એમાંનું એક કાવ્ય અમે જ્યારે ભણતા, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, એમાં એમના પત્નીના મૃત્યુ પછી એ દુઃખી હોય છે અને પછી પોતે જ મનથી મક્કમ થાય છે કે વાત વહી ગઈ છે તો તેની પાછળ દુઃખી થવાનું કોઈ કારણ નથી. તો એ પણ સરસ મજાનું કાવ્ય હતું, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ. એટલે અત્યારે આપણે મેરી બીમારી શ્યામાને લી એમના લેખક હરિવંશરાય બચ્ચનનો પરિચય મેળવીએ. અને આ જે પાઠ છે એ આત્મકથા અંશ છે. એટલે આપણે જોઈએ કે हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया. मैं तमने कीधुं ने कि मधुशाला थी ए अमर थई गया. मधुशाला एवी काव्य संग्रह है कि जेनी अंदर एना जीवन में बनेली बधी ज घटनाओं निरूपित है. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावादोत्तर काल के कवि में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे. छायावादोत्तर काल यानी कि शुक्लोत्तर काल भी उसे कहा जाता है. छायावादोत्तर काल या शुक्लोत्तर काल. उनका समय 1936 से 1947 तक का है और उनमें कई सारे रचनाएं हुई है. सबसे श्रेष्ठ रचनाएं उन छायावादोत्तर यानी कि शुक्लोत्तर काल यानी समय काल में हुई है. उनमें सुमित्रानंदन पंत, निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी कि अग्नेय उनका उपनाम है, महादेवी वर्मा, हरिवंशराय बच्चन, कई सारे रामधारी श्री दिनकर, कई सारे साहित्यकारों ने इन छायावादोत्तर काल में यानी कि 1936 से 1947 तक की साल से उन्हें रचनाएं की है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर, એટલે કે ઘણી બધી જગ્યાએ હરિવંશરાય બચ્ચને દિલ્હી में सरकारी सेवा, आकाशवाणी केंद्र पर बधी ज जगह तेमने सेवा आपी है. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. लेकिन भारत के एक विशिष्ट साहित्यकार के यानी कि व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें मान्यता आपी यानी कि
માન સન્માન આપ્યું હતું। પ્રારંભિક નોકરી પાયોનિયર પ્રેસ મેં की थी। શરૂઆતની એને જ્યાં જોબ કરી, નોકરી કરી, સેવા કરી એ પાયોનિયર પ્રેસની અંદર એમને કામ करेलू हतुं। जो वरी आव्युं कि मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली, इतनी प्रतिष्ठा मिली, इतनी शोहरत मिली कि इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का એટલે કે મધુશાલાની જે કાવ્ય પંક્તિઓ છે કે કાવ્યો છે કે રચનાઓ છે એનું સભા, सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में उनकी रचनाओं एनी रचनाओं वादन थतुं, गायन थतुं अने लोग बड़ी संख्या में भी उमड़ते એટલે કે જાજી સંખ્યાઓમાં પણ માનદ મેદની એકઠી થતી, માણસો ભેગા થતા। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वांग्मय पर आपने पीएचडी की है। क्या कहते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जॉन पेट्स नामक कवि थे, उन्होंने जितनी रचनाएं की એટલે કે જે એમની જે વાણી સાહિત્ય સ્વરૂપે પ્રચલિત થઈ એ વાંગમય એટલે કે વાક એટલે વાણી એટલે એની વાણી ઉપર हरिवंशराय बच्चने पीएचडी કર્યું છે। અને केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार यानी कि हरिवंशराय बच्चन को कई सारे पुरस्कार मिले हैं। सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। इन तीनों पुरस्कार और इनसे अलावा भी कई सारे पुरस्कार हरिवंशराय बच्चन को प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, एवी एनी साहित्य रचनाओं है। जैसी काव्य पंक्तियों आज भी लोगों की जबान पर आज भी है। मधुशाला, निशा निमंत्रण में यहाँ पर उनके जो काव्य संग्रह है और उनकी जो आत्मकथाएं है वो मैंने लिखी है। काव्य संग्रह में मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत और आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। फिर से हम देखेंगे मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत, ये उनके काव्य संग्रह है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, यह उनकी आत्मकथा है। यह पाठ है ये आत्मकथांश है और यह पाठ हरिवंशराय बच्चन ने की जो 4 भाग में आत्मकथा लिखी गई है उनमें से पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, उनमें से यह मेरी बीमारी श्यामा ने वह ली गई है। प्रस्तुत कथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबल वर्णन हुआ है, निरूपण हुआ है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता, एक और श्यामा की कारुणता और दूसरी ओर कवि हरिवंशराय बच्चन की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। आ पाठनी अंदर सामान्य आपणे परिचय मेळवीए तो हरिवंशराय बच्चन नी पत्नी, पहली पत्नी श्यामा छे ए बीमार होय छे, पण धीमे धीमे हरिवंशराय बच्चन छे ते नौकरी करता होय छे, पुस्तकनुं वेचाण करता होय छे, ट्यूशन करावता होय छे, पण धीमे धीमे एमने तपेदिक यानी कि क्षयनो रोग लागू पड़े छे અને ક્ષયનો રોગ લાગુ પડે છે। આ વાતની શ્યામાને ખબર પડે છે। શ્યામા બીમાર હોય છે, પરંતુ જેવા હરિવંશરાય બચ્ચન બીમાર પડે છે જેવા તરત જ શ્યામા સ્વસ્થ થઈ જાય છે। એની પાછળ તો બીમારી છે જ, भीतर ही भीतर बीमारी उनको खाई जा रही है, लेकिन हरिवंशराय बच्चन बीमार पड़े छे एटले श्यामा स्वस्थ छे एवुं देखाड़े छे, जेथी करीने हरिवंशराय बच्चनने कोई मुश्केली पड़े नहीं। एनी आर्थिक स्थिति पण खूब नबળી होय छे। एनो नानो भाई शालिग्रामनो पगार पण एटलो होतो नथी के ए आखुं घर चलावी शके, पण छतांय आ बीमारीथी बहार निकळवुं पड़े ए जरूरी छे। अने हरिवंशराय बच्चन आराम करे छे,
એની પત્ની શ્યામા ખૂબ એની દેખભાળ કરે છે, ખૂબ એની કાળજી રાખે છે અને હરિવંશરાય બચ્ચન સ્વસ્થ થાય છે. અને જેવા હરિવંશરાય બચ્ચન સ્વસ્થ થાય છે અને તરત જ શ્યામાની બીમારી ઘેરો લઈ જાય છે. આપણે કહીએ ને કે ભયડો લઈ ગઈ, એમ બીમારી એને ભયડો લઈ જાય છે, ઘેરો લઈ જાય છે, એટલે કે ખૂબ બીમાર પડી જાય છે. અને હરિવંશરાય બચ્ચન એ બીમારીથી બચે છે પણ એમની પત્નીને બચાવી શકતા નથી. એટલે એ બધી વાત એમની પત્ની શ્યામાનું મૃત્યુ થાય છે અને ખૂબ કારુણ્યસભર કહાની આની અંદર છે. હવે આપણે પાઠ જોઈએ कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। हरिवंशराय बच्चन क्या कहते हैं? मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना मैंने यहाँ लिखा है कि लाड प्यार करना, दुलराना यानी लाड प्यार करना, કે હું મારી બીમારીને આમ સાચવીને ન રાખતો. ઘણા માણસો બીમાર પડતા હોય તો બીમાર છે એટલે કંઈ કામ ન કરે ને એટલો આરામ જ કરે ને ખાધા જ કરે ને, એટલે हरिवंशराय बच्चन એમ કહે છે કે મેં अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भय था, એટલે કે નિર્ભય હતા એની બીમારી પ્રત્યે. એને બીમારી છે તો શું થઈ ગયું, તોય કામ તો કરવાનું જોઈએ, કે બીમાર હોય તો કાંઈ પડ્યું થોડું રહેવાય, એવા એ નિર્ભય હતા. અને मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हरिवंशराय बच्चन क्या कहते हैं कि मैंने कहीं गांधी जी की पुस्तक में लेख में से पढ़ा था कि जो व्यक्ति बीमार होता है यानी कि बीमार होना अपराध है। पर हरिवंशराय बच्चन इनसे आगे कहते हैं कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी तो है ही, लेकिन मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था कि अपराधी को दंड देना चाहिए। हरिवंशराय बच्चन क्या कहते हैं? गांधी जी ने तो इतना ही कहा कि बीमार होना अपराध है, पर हरिवंशराय बच्चन इनसे आगे कहते हैं कि अपराधी को दंड देना चाहिए। क्यों? तो कि जब बीमार ही स्वस्थ रहना एक व्यक्ति की जवाबदारी है, व्यक्ति को अपनी પોતાની રીતે પોતે સ્વચ્છ રહેવું એ વ્યક્તિએ ધ્યાન રાખવાનું છે, એને કાળજી રાખવાની છે. એટલે જે બીમાર પડે એને દંડ આપવો જોઈએ. मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। क्या कहते हैं हरिवंशराय बच्चन कि छोटी मोटी जब मुझे बीमारी होती तब मैं पड़ा नहीं रहता था, खाट पर लेटा नहीं रहता. खाटलो के चारपाई આપણે જે કહીએ તે. और भी अपने से काम लेता, એટલે કે વધારે પડતું હું કામ લેતો. હું બીમાર જ્યારે પડતો ત્યારે હું સૂતો ના રહેતો, હું વધારે પડતું મારા શરીરને કામ આપતો. અને मुझे तो भरे भूटे बुखार में, એટલે કે बहुत तेज, भरे भूटे यानी कि बहुत तेज, मुझे बहुत तेज बुखार में भी अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है. क्या कहते हैं हरिवंशराय बच्चन કે ખૂબ તેજ તાવ હોય, બુખાર હોય તો પણ હું ટ્યુશન કરાવવા ગયો છું એવું મને યાદ છે. बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? અહીં अपनी जात को वह गरीब समझते हैं कि मजदूरी करने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी तो अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी यानी हरामीपन. यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि हरामीपन, કે બીમારી તો અમીર એટલે કે અમીર જ બીમાર પડી શકે, ગરીબોને કોઈ બીમાર પડવાની लायक જ નથી, અથવા તો ગરીબોને કોઈ હક જ નથી. गरीबों को तो उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए. क्या कहते? पीछे न लगाना. मुहावरे का अर्थ है कि अपने को परेशानी में पीछे न लगाना, अपने को परेशानी में न डालना, यानी कि गरीबों को अपने को परेशानी में न डालने का कोई हक भी नहीं है. लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता. क्या कहते हैं हरिवंशराय बच्चन કે લખવામાં તો મને જે વધારે પડતો બુખાર યાની કે વધારે પડતો તાવ લખવામાં તો પ્રોત્સાહક, સહાયક અને પ્રેરણાદાयक बनतो હતો. અને एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों को ताप आता और जिसमें गल्प गल्प कर मेरा हृदय ढलता. क्या कहते हैं કે એક પ્રકારનો તાવ આવે એટલે શરીર ગરમ હોય તો એક પ્રકારનો તાપ, અને જેનાથી હું ઓગળી જતો અને એ તાપથી એકદમ ઉર્જા મારા શરીરમાં આવતી અને લખવામાં પણ મને ઉર્જા આવતી, મારી અનુભૂતિઓમાં પણ તાપ આવતો, એટલે કે એમાં પણ તેજી આવતી અને હું સરસ રીતે લખતી.
एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार भाव कल्पनाओं का उबाल देकर उच्छलित करती। એટલે કે એક પ્રકારની ભઠ્ઠી જાણે શરીરની અંદર એક પ્રકારનું તેજ, એક પ્રકારની ગરમી જાણે શરીરની અંદર હોય અને મને લખવામાં જાણે આમ ટેકો આપતી હોય કે નહીં, આ ગરમીથી ઉર્જા મળતી હોય એમ હું ઉબાલ कर લખતા। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर એટલે કે જબરજસ્તી, એટલે હું એવું તો નહીં કહું કે એવા તાવમાં હું પરાણે લખતો હતો, પણ મને ખબર પણ ન પડતી તાવ હોય તોય હું લખતો અને સારી રીતે લખી શકતો હતો, મને કોઈ એમાં અડચણરૂપ પણ નહોતું। એટલે કે એવું ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं जबरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता, यानी कि अड़चन रूप न तो मारी माटे था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। એટલે કે સામાન્ય એવો તાવ હોય, સામાન્ય એવો બુખાર હોય તો આસાનીથી મારા બધા જ કામ હસ્બ મામૂલ નિત્ય કે નિયમ કે અનુસાર, એટલે કે કાયમી જે રીતે કરતા હોય એ રીતે મારા બધા જ કામ થતા। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है तो मैं पट से जवाब दे देता। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मुझे बुखार है, लेकिन कोई मेरा बदन को छूकर कहता कि तुम्हें बुखार है फिर भी तुम काम कर रहे हो, तब मैं उसे पट से जवाब दे देता था। पट से जवाब देना यानी कि तुरंत और निर्भय होकर जवाब देना। पट से जवाब दे देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ तो क्या हुआ, बुखार है तो। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। कौन कहता है? किपलिंग, एक अंग्रेज साहित्यकार है, कि वो कहता है कि मैं कभी कभी तो बुखार में भी काम करता था और बुखार में तो मैं अच्छी कहानियां लिखता था। ये किपलिंग एक रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे। 30 दिसंबर 1865 में उनका जन्म हुआ, यानी कि मुंबई में। इनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर म्यूजियम के क्यूरेट थे और रुडयार्ड किपलिंग, इसका पूरा नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वे लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी का भंडार भरा था। सन 1936 में उनकी मृत्यु हुई। इन किपलिंग भी कहता है, यहाँ किपलिंग, सात्र, शोवियल, ऐसे कई विदेशी साहित्यकारों का उदाहरण भी हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि चाहूँगा प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि हरिवंश राय बच्चन अब करता है कि किपलिंग का उदाहरण देकर वह कहता है कि मुझे भी प्रसंगवश याद आ गया कि मैंने भी अपनी 2 चट्टाने की, ये उनकी साहित्य रचना है, 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बक्सर हनुमान मैंने प्लूरिसिस में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरिसिस फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना। प्लूरिसिस फेफड़ों में पानी भर जाना। और क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि सात्र ने जब नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया तब मैंने 2 चट्टान और सिसिफस बक्सर हनुमान ये दोनों लिखी थी। सात्र कौन है? तो सात्र का जन्म पेरिस में हुआ है और वह जर्मन और फ्रांस साहित्यकार है। और सिसिफस ग्रीक पुराणों में सिसिफस एक विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्तित्व है। वह कोरिंथ का राजा था। पुराण अंदर ग्रीक पुराण में सिसिफस एक विलक्षण और चमत्कारी व्यक्तित्व है और वह कोरिंथ का राजा था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत था और विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था। 2 चट्टानें, विशाल चट्टान, उन्हीं को उनमें लेकर हरिवंश राय बच्चन ने 2 चट्टानें लिखी थी जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। और सिसिफस को इस खेल में बहुत आनंद आता था। उसने मृत्यु को बंदी बना लिया था और ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित
अनेक कथाएं मिलती है। ग्रीक पुराण में सिसिफस की अनेक कथाएं मिलती है। उनके नाम से लेखक ने 2 चट्टानें और सिसिफस बक्सर हनुमान प्लूरिसिस के यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना उन बीमारी में भी लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था कि बीमारी मुझे पराजित न करती थी, એટલે કે मैं યુવાન હતો ત્યારે મને બીમારી સ્પર્શતી ન હતી, એટલે કે મને કમજોરી આવતી ન હતી। બહરહાલ यानी कि कोई हर हालत में, बहरहाल यानी हर हालत में, એટલે કે કોઈ પણ રીતે આ બીમારી મને ઝકઝોરતી નથી। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। विश्राम तिवारी एना कोई संबंधी हरिवंशराय बच्चन कहता वारंवार कि मार के पीछे भूत भागे, यानी कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना, એટલે કે समस्या आवे तो नाराज न थવું, हारी न जવું, पण कोईपण रीते समस्यानो निकाल करवो, एनो हल करवो, એટલે કે किसी भी तरह से समस्या का हल करना। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। बीमार पड़ा हरिवंशराय बच्चन એટલે કહે છે કે मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि जैसे विश्राम तिवारी ने कहा कि मार के पीछे भूत भागे, इसी तरह मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे, એટલે કે કામ કરો એટલે આપોઆપ એ ભૂલાઈ જાય અથવા તો આપોઆપ बुखार जतो रहे। यह बुखार मामूली न था। अब कहते हैं हरिवंशराय बच्चन कि इस वक्त जो बुखार आया है, इस समय जो बुखार है वह कोई मामूली बुखार न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना એટલે કે हिला देना, झकझोरना यानी हिला देना, कि उन तूफान से उसका संबंध था और जो शांत होने से पूर्व मुझे सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया। उन बुखार से था जो मेरा बुखार शांत होने से पहले विध्वंस झटका दे गया। यानी कि किसकी बात करता है कि हूँ ज्यारे साजो थयो त्यारे विध्वंस झटको कयो हतो, एनी पत्नी श्यामा खूब बीमार पड़ी अने एनुं मृत्यु થઈ ગયું। એટલે હરિવંશરાય बच्चन કહે છે કે આ વખતનો જે બુખાર છે એ સામાન્ય ન હતો। और स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। स्कूल भी बंद था, अवकाश का समय था और ट्यूशन में जाता था, उनकी आमदनी भी की उसको ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, किताब की बिक्री कर रहा था लेकिन किताब की बिक्री भी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला અને એના ઉપર ખૂબ દેણું હતું, कर्ज यानी कि देणुं, के बुखार तो जाने का नाम ही नहीं लेता था कि 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। अवकाश के बाद जून जुलाई, जब शाला खुलवानो समय थे गयो, जुलाई आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 सेल्सियस से 102 सेल्सियस के बीच। શું કહે છે કે હવે તો સ્કૂલ પણ ચાલુ થઈ ગઈ હતી, ટ્યુશન પણ જવું પડતું હતું અને તાવ પણ, બુખાર પણ જવાનું નામ ન લે। અને એનો નમૂનો કેવો તો કે સવારે કાંઈ નહીં અને સાંજે પાછો તાવ આવી જાય, પાછો તાવ ચડી જાય। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा सोकिया दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था। क्या कहते हैं कि कमजोरी दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी और कई सारे दवा बाटू એટલે કે દવા વેચવા વાળા, દવા બાટવા વાળા, દવા બાટને વાળા, દવા બાટુ यानी कि औषधि देवा वाला અને होम्योपैथी, आ बधाईनी कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी क्षय, એટલે એવી બીમારી હતી કે હરિવંશરાય બચ્ચનને ધ્યાનમાં આવી ગયું કે શું મને આ ક્ષય નામનો રોગ થઈ ગયો છે। લક્ષણો તો એવા દેખાય છે। हो गया तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। શું કહે છે કે જો તપેદિક થઈ ગયો તો એલોપેથીનો ઇલાજ કરાવવો એ મારા આવકની અંદર નથી, એટલે કે મને પરવડે તેમ નથી, मुझे मेरे बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी? जब मैंने जीवा पर सरस्वती बैठना,
जिह्वा पर सरस्वती बैठना, यानी कि कही हुई बात सच होना। लेकिन ये समये हरिवंश राय बच्चन बोले छे कि जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं वर्षों से मैं लेने जा रहा हूँ, અને જ્યારે હરિવંશરાય બચ્ચન બીમાર પડે છે ત્યારે એ બોલે છે કે હવે હું શ્યામાનું જે બીમારી છે એ હું લઈ લઉં છું. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન એમ કહે છે કે શું ત્યારે મારા જીભ ઉપર સરસ્વતી બેઠી હતી કે ખરેખર સાચું થઈ પડ્યું હતું? એટલે ખરેખર એવું જ થયું, પણ શ્યામા ખરેખર સ્વસ્થ નહોતી. એ તો હરિવંશરાય બચ્ચનની બીમારી જોઈ અને પોતે સ્વસ્થ હોવાનો દોડ કરતી હતી. बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है. जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, कि पिछले 6 वर्षों से एक पण महीना में एने तावथी मुक्त थया छे, कि बीमारी थी मुक्त श्यामा थई छे એવું જોવા મળ્યું નથી. पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी. उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए. क्या कहते हरिवंश राय बच्चन કે શ્યામાને પોતાની ઈચ્છાથી પોતે સ્વસ્થ છે એવું હરિવંશ રાયને બતાવતી હતી. કારણ કે જો શ્યામા બીમાર હશે તો હરિવંશ રાય બચ્ચન દુઃખી થશે, એટલે કે એ એવું કરવા માંગતી ન હતી. એટલા માટે એને પોતાની જાતને स्वस्थ बनावी लीधी. उसने अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था. क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि मेरी बीमारी को घर के कोई भी सदस्य को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं जब बीमार पड़ता हूँ तब मैं लेटता नहीं था, मैं तो मेरे सब काम सामान्य ढंग से किए ही जा रहा था, इसलिए किसी को पता भी नहीं था. गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं. एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, यानी कि डॉक्टर मुखर्जी पासे जई अने हूँ तपास कराऊं एवं श्यामाने कह્યું. પણ હરિવંશ રાય બચ્ચન એમ માને એમ નતા. આટલો તો સામાન્યતા હોય જ, તો એમાંથી થોડું બી જવું એવા નિર્ભય હતા. એટલે મેં टालमटोल की यानी कि आनाकानी करवी. टालमटोल करवी એટલે કે આનાકાની કરી કે ના ના આટલા તાવમાં શું, આ તો મટી જાય, આમાં કઈ ડૉક્ટર પાસે જવાની જરૂર ન હોય. तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. ब्रह्मास्त्र यानी कि कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र. आपने खबर पण छे अश्वस्थामा पण ब्रह्मास्त्र छोड़ता हतो. अर्जुनने पण छोड्યું હતું ब्रह्मास्त्र. કર્ણને પણ બ્રહ્માસ્ત્રનું જ્ઞાન હતું અને રાવણનો પુત્ર મેઘનાથ ઇન્દ્રજીતને પણ બ્રહ્માસ્ત્રનું જ્ઞાન હતું. આપણે મહાભારત અને રામાયણ તો જોતા જ હશું. એટલે કે અહીં બ્રહ્માસ્ત્ર એટલે શું કે એવું વચન કે જે હરિવંશ રાય બચ્ચન એને નિષ્ફળ કરી જ ન શકે. એટલે કે શ્યામા એ એવું વચન લઈ લીધું કે એ ના પાડી શકે જ નહીં, આનાકાની કરી જ ન શકે. શ્યાमा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी. श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि हरिवंश राय बच्चन जब तक डॉक्टर को न दिखाए तब तक श्यामा खाना नहीं खाएगी. ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था. डॉक्टर मुखर्जी का भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है. नुस्खा उन्होंने लिख दिया. नुस्खा मैंने यहाँ लिखा है हकीम या वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि. नुस्खा यानी कि हकीम या वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि, यानी कि बीके मुखर्जी ने नुस्खा लिख दिया और चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा. क्या मेरी विदा का समय आ गया? नुस्खा क्यों लगा हरिवंश राय बच्चन ने? मौतनो कारण એટલે કે મૃત્યુ કા કારણ ઉनको લગા. મોત કા પરવાના यानी આજ્ઞાપત્ર, પણ મોતનું આજ્ઞાપત્ર લાગ્યું એવું હરિવંશ રાય બચ્ચનને આ ડૉક્ટર મુખર્જીએ જે દવા આપી એ એમને લાગ્યું. क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने की, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? हरिवंश राय बच्चनને મનમાં પ્રશ્ન થવા માંડ્યા કે લે મારું મોત તો હવે નજીક આવી ગયું, શું આટલા દિવસ માટે જ અહીંયા ગાવા માટે આવ્યો હતો? આટલા દિવસ માટેની જ મારી જિંદગી હતી. इतने ही दुख संकट उठाने के लिए मैं यहाँ आया था. સ્વાગત के ही साथ विदाई होती देखी तैयारी. શું કહે છે કે મારા સ્વાગતની સાથે જ હવે મારે વિદા થવાનો છે એવી તૈયારી હરિવંશ રાય બચ્ચનને જોવામાં આવી. એટલે કે એવો વિચાર એને આવ્યો. उनकी लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला. क्या कहते हैं कि मेरी बंद लगी मेरी जीवन मधुशाला. क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था
વળી પોતે વિચારે છે કે શું મારી ભવિષ્યવાણી મેં ખુદે જ કરી છે? વળી પાછો એને પ્રશ્ન થાય છે કે ક્યાં શ્યામા કે ભાગ્ય મેં વૈધવ્ય ભી लिखा है, વિધવા પણ શ્યામા કે ભાગ્ય, એને પ્રશ્ન થાય છે હરિવંશરાય બચ્ચનને કે શ્યામા કે ભાગ્ય મેં વૈધવ્ય लिखा है, વિધવા પણ लिखा है, શું મારું મૃત્યુ નજીક આવી ગયું છે? આવા પ્રશ્ન હરિવંશરાય બચ્ચનને થાય છે. અને એ સમયમાં તપેદી ક્ષય એટલે કે જીવલેણ રોગ ગણાતો. હવે તો એમનો ઈલાજ શક્ય છે, હવે એ જીવલેણ નથી, પણ એ સમયની અંદર એ जीवलेण હતો. मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगता था. क्या कहते हैं कि मुझे मरने से कोई डर नहीं था, कठिन लगा मरने के पहले जीना. અને कठिन क्या लगा कि मरने के पहले मैं कैसे जीऊंगा? क्यों? तो कि पूरे आराम का अर्थ क्या होगा, यानी कि ट्यूशन छोड़ देना, स्कूल छोड़ दूँ, स्कूल में छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ कि पगार वगैर बगैर तनख्वाह से मैं स्कूल से छुट्टी ले लूँ तो क्या होगा? तो सिर पर तो कर्ज चढ़ रहा था, इसलिए हरिवंशराय बच्चन को चिंता हो रही थी. फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह से बल पर घर नहीं चला सके. उनका छोटा भाई शालिग्राम है, वह उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि उनकी तनख्वाह से घर का सभी खर्च चले. कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर नहीं भेजेगा तो स्थिति में न होगे. महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है. અને કિતાબો की बिक्री भी ऐसी नहीं हो रही थी और आमदनी भी अनिश्चित थी. कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था और कर्ज भी सिर पर इतना ज़्यादा था कि उसको भी पूरा करना था. श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी. श्यामा ने हरिवंशराय बच्चन की बीमारी सुनी तो वो काँप उठी. पहले तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, काँप उठी, ओह अब क्या करेंगे, पर तुरंत संभल गई. श्यामा समझदार थी, तुरंत संभल गई और दृढ़ भी हो गई, दृढ़ થઈ ગઈ એમ કે ના હું જો ભાંગી પડીશ, હું સ્વસ્થ नहीं रहूँ तो हरिवंशराय बच्चन પણ એમના पति પણ स्वस्थ नहीं रहे. जैसे अपने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना में यानी कि हरिवंशराय बच्चन सहन नहीं कर सकेगा. इस खबर में मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया. क्या कहते हैं कि मुझे तपेदिक हुआ है, इन खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया. लकवा सा मारना यानी कि स्तब्ध हो जाना. वह भी स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे. उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम अपना घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे. शालिग्राम भी असमर्थ था. शालिग्राम को पता चला तो वो असमर्थ था, उसकी आमदनी भी इतनी नहीं थी, तनख्वाह इतनी नहीं थी, इसलिए वो उसास लेकर खड़ा हो गया, यानी कि निश्वासों नाखी અને ઊભા रह गया. मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली. किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, इनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया. चारपाई यानी कि खाटलो આપણે કહી તે. श्यामा की सेवा साकार हो गई और डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था. जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था. ઘણું બધું કામ કરવાનું હતું, ચિંતા માટે તો સમય પણ નહોતો. अब तो चिंता ही चिंता करने को थी. પડ્યા પડ્યા શું કરે, એટલે કે ચિંતા જે ચિંતા હતી, કર્જની चिंता, ઘર ચલાવવાની चिंता, આમદની નહોતી, પુસ્તક વેચવાની चिंता, विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी. અને એ બધાઈ थी विशेष चिंता हरिवंशराय बच्चन को उनके सिर पर चढ़े हुए कर्ज की थी. और मेरा इलाज हो या ना हो पर कर्ज की किस्ते तो जानी ही चाहिए. मारो इलाज થાય કે ન થાય પણ કર્જમાંથી તો મુક્તિ કિસ્તે તો જાની ही થાય, यानी कि कर्जમાંથી તો મુક્તિ મળવી જ જોઈએ. અને उनकी नियमित अदायगी એટલે કે કાયમી પૈસા ચૂકાના, अदायगी यानी पैसा चुकाना के साथ मेरी साख जुड़ी थी. साख यानी प्रतिष्ठा, એટલે કે કાયમી હું જે વ્યાજ ચડતું હતું એ નિયમિત આપતો તો એ મારી પ્રતિષ્ઠા હતી. અને જો હવે હું નહીં આપી શકું તો મારી प्रतिष्ठाને हानि पहुंचसे. अदायगी यानी कि पैसा चुकाना. और उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी. અને શું કહે છે, અને જો प्रतिष्ठा જાશે તો મારા મરવા પહેલા જ મારી મોત થશે. આવું હરિવંશરાય બચ્ચન વિચારે છે. આ પાઠ આપણે એક ભાગમાં અહીં સુધી જોશું. હવે બાકીનો જે ભાગ છે એ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર જોશું. આની અંદર તમારે જેટલા જેટલા મહાવરા હું બોલી, જેટલા શબ્દાર્થ બોલી, અહીં જેટલા શબ્દાર્થ લખ્યા છે એ બધા જ શબ્દાર્થ જેટલા નીકળે એટલા 25 નીકળે
30 નીકળે તો એ બધા જ શબ્દાર્થ ટિપ્પણી લખવાની છે અને પછી મને મોકલવાની છે. ન સમજાય તો ફોન કરીને પણ પૂછી શકો. નમસ્તે. ભારત માતા કી જય.